Hello students, welcome to CAT VARC orientation. So guys, this is the very first session for CAT Verbal. So यार इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि what is the syllabus of VARC, what sort of content comes on the CAT VARC section और क्या बेसिकली हमारा प्लान रहना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करना है, ठीक है. तो सारी बातचीत हम लोग करेंगे. यू कैन ऑल्सो लीव योर क्वेश्चंस इन दी कमेंट्स. ओके, तो एक बार सेशन जब खत्म हो जाएगा तो आपके दिमाग में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो VARC से रिलेटेड हैं तो आप नीचे कमेंट्स में छोड़ सकते हो. सो आई वुड चेक आउट दोज कमेंट्स एंड इन द अपकमिंग सेशंस आई वुड लाइक टू एड्रेस इट. राइट, तो स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट समथिंग अबाउट माई सेल्फ. तो वैसे तो हम लोगों ने मुलाकात की थी, ठीक है, लास्ट सेशन के अंदर एक बार हम मिले हैं. बट दिस इज my profile. Okay, so guys, my name is Himanshu, and I have written CAT multiple times, scoring more than 99 percentile on the verbal section. The highest being CAT 99.7 that I got in CAT verbal. I've had calls from IIM Bangalore, Indore, Shillong, and by qualification, I have an MA and MPhil in English literature. So that was about my profile, and now let's come to the basic agenda for today's session. So when I look at CAT, we all realize that CAT is an exam that is very different from any other exam that happens in India or for that matter the entire world. Specifically जो verbal section है, verbal section का जो breakup है, ठीक है, that is, I would say it's very strange. Okay, strange in the sense that there is no other exam that has no grammar at all as far as your verbal syllabus goes. Okay, if you look at GMAT, if you look at other exams also, there's always a certain percentage of questions on vocab and grammar. In CAT, you don't have any direct questions from vocab and grammar. हालांकि vocab का एक indirect application है जिसकी मैं बात करूंगा, but direct questions नहीं आते. There's no synonyms, antonyms, there's no verbal analogy, there's no fill in the blanks. Right. Second thing that you notice is that 16 questions on the CAT paper come from reading comprehension. बड़ा strange चीज़ है, right? मतलब आप imagine करो 66.6% of the verbal section is basically unseen passage. Okay, now this creates a very unique challenge कि अगर मेरा पेपर 66.6%, ठीक है, 16 आउट ऑफ 24 क्वेश्चंस अगर अनसीन है, तो यार ऐसा मैं क्या प्रिपेयर करूं कि जो चीज़ मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी, ठीक है, ऐसा कोई कंटेंट मुझे एक्चुअल कैट में देखने को मिलेगा, अनसीन पैसेज है, तो व्हाट शुड आई एग्जैक्टली प्रिपेयर, राइट? ओके, बिकॉज देयर इज नथिंग टू लर्न एज सच. Okay, so that's a unique challenge. There is no other exam as far as I am concerned, या जितना मैंने अभी तक रिसर्च किया है, तो मुझे ऐसा कोई एग्जाम नहीं मिला जिसमें वर्बल सेक्शन का 2/3 आप वर्बल का सिर्फ अनसीन पैसेज को दे दो, है ना? ठीक है, so that is something that makes the verbal section unique. And then you have 8 questions from verbal ability. जब verbal ability हम बोलते हैं तो verbal ability में बहुत limited question types हैं. So you have something called as para summary. Okay. Then आ गया आपका para jumbles case, ठीक है. Then you have odd one out, and then you have para completion. Okay, that's it. That's it as far as the syllabus is concerned. And 16 plus 8, you have a total of 24 questions. These 24 questions are to be attempted in 40 minutes. और जो वर्बल सेक्शन है उसमें आपके पास वो चॉइस नहीं होती कि भाई मैं इसको पहले करना चाहता हूँ, लास्ट में करना चाहता हूँ. बाय डिफॉल्ट जब आप अपना टेस्ट स्टार्ट करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग में ही आएगा. ओके, दैट मेक्स वर्बल सेक्शन इवन मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज the sort of state that you are in, that sort of mood that you are in is to a large extent dictated by your performance on the verbal. Right. So ये तो हुई देखो हमारे सिलेबस की बात. 16 plus 8 का ब्रेकअप है, टाइम 40 मिनट्स है और पहला सेक्शन है. ओके, लेट्स गो अ बिट डीप. व्हाट एग्जैक्टली इज कॉम्प्रिहेंशन? सबने सुना है कि यार कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करना है, रीडिंग इंप्रूव करनी है, रीडिंग ज़्यादा करना चाहिए. लास्ट सेशन में भी देयर वाज सम कमेंट फ्रॉम सम पीपल कि सर एग्जैक्टली कॉम्प्रिहेंशन क्या रीड करना है, ठीक है. तो उस क्वेश्चन को भी आज मैं एड्रेस करने वाला हूँ. तो लेट मी स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट एग्जैक्टली इज कॉम्प्रिहेंशन. Now, comprehension, guys, is your ability to read a text, analyze the content, and to infer a message from that. Now, comprehension is a life skill.
comprehension is not something that you prepare only for a competitive exam. This is a life skill. आप जिंदगी में जो आपने अभी तक अपनी ग्रेजुएशन तक जितना भी पढ़ाई की, हो सकता है कि उसका कोई काम आए चाहे नहीं आए. इंग्लिश की गारंटी है कि इंग्लिश तो आपके काम में आएगी ही, बिकॉज द वेरी फैक्ट दैट यू गोना बिकम अ मैनेजर, one of the essential skills that you absolutely need is superior communication skills. You need extraordinary written English. Okay, you need to talk to like your batchmates in English. Okay, so one skill that is indispensable is your skill of language, right? So ये तो काम आनी ही आनी है. Okay, in fact, it's a research thing that your communication skills and levels of vocabulary are directly correlated with the amount of money that you make in life. तो दिस इज अ लाइफ स्किल, है ना. आप बिना कम्युनिकेशन के, बिना वर्बल स्किल्स के नहीं सर्वाइव कर सकते. तो ये लाइफ स्किल है. एंड टू सम एक्सटेंट एनीवन हु इज राइटिंग कैट हैज सम लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन. तो ऐसा नहीं है कि आपको कॉम्प्रिहेंशन को स्क्रैच से स्टार्ट करनी है. कोई भी स्टूडेंट जो कैट दे रहा है उसको एक लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन पहले से ही आता है. ओके, इफ आई गिव यू अ नॉर्मल बुक बाय लेट्स से चेतन भगत, आर यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट? Obviously you are able to understand. If I give you a normal let's say English movie to watch, are you not able to make sense of what these people are saying? Yes, able to understand. Okay, so what is the challenge, guys? The challenge is that though as a student I am able to comprehend a normal simple written text, but I'm not able to handle something that is cat level comprehension. So हमारा जो चैलेंज है ना, ठीक है, वो है कैट लेवल कॉम्प्रिहेंशन. तो you need to be very specific in exactly what you are trying to achieve in the next 6 months. You are trying to master at least some areas that you know already are going to come on CAT, and you are able to read those areas and understand the message or infer the message that you need to infer from the passage. So reading आपको आती है. You are from a background where you have read some books. For those of you who are English medium students, okay, already your textbooks are in English, but the challenge is that are you able to handle a CAT level comprehension? ठीक है, तो उसमें फर्स्ट स्टेज तो यही हो सकती है कि भाई आप CAT के पेपर्स को उठा के देखें और एक सेंस लें कि भाई ये CAT का पैसेज लगता कैसा है, राइट. एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू इट वुड बी लाइक a bit complex, bulky, something that you're not interested in, which again is a challenge, and having some complex words difficult to understand, right? Now that creates a challenge for me. Okay, so coming back, comprehension is a life skill. Comprehension is something that most of us already have. We all have some basic levels of English, but CAT level का comprehension में से काफ़ी लोगों को नहीं आता, मैक्सिमम लोगों को नहीं आता. ठीक है, तो वो हमारा बेसिकली टास्क है, हमें सीखना है. ठीक है. Why do CAT passages look tough? So this is my research that the IIMs have heavily focused on people who have a certain bent of intellectual caliber. Right. That is the reason why even if you look at the entire selection process, now they give you essay writing, because in essay writing it's very difficult to bluff. Okay, you can actually check the level of intellect of a person. Okay, आपका कितना thinking skills है, आपका कितना logical skills है, पढ़ के आप कितना समझ पाते हो, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी essay writing में चेक होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी RC में चेक होती हैं. Okay, so reading comprehension in CAT looks tough because the sort of content that you find on CAT is not the sort of content that we usually enjoy. And obviously there are exceptions. आप ये बोल सकते हो कि सर मुझे तो इन जनरल भी फिलोसफी पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है. ठीक है, आई हैव रेड लाइक, है ना, सम बुक्स ऑफ गुड फिलोसफर्स, है ना. या आप कह सकते हो कि सर मैं तो एक साइंस एंथुजियास्ट हूँ, आप मुझे एक नॉर्मल आर्टिकल दे दोगे साइंस का तो मैं बड़े बड़े मज़े से पढ़ता हूँ. ठीक है, वो एक्सेप्शंस हैं, बट हम में से जो मेजॉरिटी हैं, we can read something related to sports, we can read something related to movies, but यार कोई स्पेसिफिक एरिया का कोई स्पेसिफिक आर्टिकल आ गया और उसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं है तो मैं उसको नहीं रीड करता, है ना. ठीक है, तो the reason why CAT passages look tough is because a lot of those areas that these passages are from, whether it's anthropology, it's sociology, philosophy, psychology, psychiatry, okay, natural sciences, ये सारे areas हमारी चॉइस नहीं होते.
और क्योंकि हमारी चॉइस नहीं होते तो पहली बार जब हम कैट में देखते हैं तो हमें टफ ही लगेंगे, बिकॉज वी आर नॉट कंफर्टेबल विद दोज एरियाज, राइट? सो दैट इज रीजन नंबर वन. Second reason is the language. Okay, the second reason is language. Um, in daily language, we don't use words like abstract, abandon, abhor, abjure, abstinence, caricature, recalcitrant. है ना? These are the sort of words that you find in good written English. तो जब हम लोग कैट का पैसेज पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जो हमने कभी सुने नहीं है. The language is structured in such a manner that it looks very dense, very complex, and most of us are not very comfortable with that sort of language. Even जो novels वगैरह हम पढ़ते हैं बड़ी normal simple language में होती है. ठीक है, मैं एक जनरली बात करता हूँ कमर्शियल लिटरेचर की. बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर हम लोग नॉवेल्स वगैरह तो हम भी पढ़ते हैं, लेकिन कैट का पैसेज हमें फिर भी समझ में नहीं आता. तो भाई आपको इसलिए समझ में नहीं आता बिकॉज जो मार्केट में नॉवेल्स मिलती हैं दे आर कमर्शियल लिटरेचर. ठीक है, तो इफ यू लुक एट द highest selling authors in India, they're normally writing novels that are written in such a easy to understand language that it can target the maximum audience. Okay, so the sort of skills that you acquire after reading those books, okay, whether it's Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki, or The Monk Who Sold His Ferrari, okay, Robin Sharma, या फॉर दैट मैटर चेतन भगत की बुक्स हैं, तो यार इनकी जो इंग्लिश है वो उतनी बेसिक लेवल की है कि आपको हो सकता है कि वो मोटिवेट कर दें आपको उसको पढ़ने में, लाइक ना यू गेट दैट सेंस ऑफ एंजॉयमेंट, प्लेजर, बट दे वोंट रियली रैम्प अप और इंक्रीज योर स्किल्स of vocabulary or skills of comprehension to that extent because they're too easy. That is the exact reason why I don't really recommend some of those books, okay, which are like cliched as far as reading is concerned, Alchemist and all that. Reason is because it creates an unrealistic picture of what cat is all about, right? So why cat passages look tough? Because the sort of books that we have read, the sort of novels that we have read are all written in very easy, very normal English, whereas the language of the cat passages would be slightly on the higher side, right? So they look tough, obviously. Okay. And third is vocabulary. मैक्सिमम लोगों की वोकैब उतनी वीक होती है कि भाई हम जब पैसेज को पढ़ते हैं तो वोकैब कैप्चर नहीं हो पाती, प्लेन एंड सिंपल. अगर मुझे वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो मैं उस पैसेज को नहीं समझ सकता, है ना. नाउ वन ऑफ द counter arguments can be कि like I have heard that you can just guess the meaning of the word from the context, and because you have been able to guess the meaning of the word from the context, contextual understanding की वजह से मुझे समझ में आ जाए. तो भाई देखो ये क्या ना, ये एक आइडिया फ्लोट होता है कि वर्ड नहीं आता, वोकैब नहीं आती, तो वोकैब की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे जो कंटेक्स्ट मिलेगा ना उससे आप निकाल लोगे. लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता. ठीक है, आई हैव सीन, पर्सनली सीन, इवन 2023 कैट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें अगर आपको एक स्पेसिफिक वर्ड का मीनिंग नहीं पता ना तो आप क्वेश्चन के ना ऑप्शंस को डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते. ठीक है, so yes, it is possible sometimes. It is possible sometimes for you to guess the meaning of the word from the context and make sense of the word from the context itself. But हमेशा ऐसा नहीं होगा, है ना. तो बहुत बार ऐसा होगा कि यार आपको वर्ड पता होना चाहिए, तो अगर आपकी vocab वीक है तो ये दिक्कत आपको करेगी. Okay, so where should I start? What should I do? Okay, कुछ चीजें. If you are someone who is just a beginner, set a very small target and chase that target for at least some duration. Okay, now James Clear has this 2-minute rule. Now what is exactly a 2-minute rule? If you want to cultivate a new habit, do it every day for 2 minutes. And when you have done the habit every day for 2 minutes, your body would be accustomed to doing that thing for an extended period of time, and then you can increase the targets. So what is important is first you set the systems and then you increase the intensity. हम में से ज़्यादातर लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं या पैसेजेस को स्टार्ट करते हैं तो हम लोग ना फर्स्ट टारगेट ही बड़ा बनाते हैं. गलत कर रहे हो आप. फर्स्ट टारगेट आप बड़ा बनाओगे, फर्स्ट वीक में या फर्स्ट मंथ में वो टारगेट चेज नहीं हो पाएगा, यू वुड अबैंडन द परस्यूट इटसेल्फ. ओके, मेरे को लगता है कि काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा. नाउ दिस माइट साउंड काउंटर इंट्यूटिव, but first you need to build up the systems and then you can increase the target. So keep a very modest target. Keep a target that is too achievable, I would say.
इन द फर्स्ट फ्यू वीक्स और मंथ। ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि भाई टोटल 6 मंथ्स हैं, तो आप मान सकते हो कि फर्स्ट मंथ में आप एक बड़ा नॉर्मल सा टारगेट चेस कर सकते हो और उसको कंसिस्टेंटली करो। ठीक है ना, मतलब जो भी आपका टारगेट है, कीप एनफ फ्लेक्सिबिलिटी इन द वे यू सेट योर गोल्स दैट यू आर एबल टू अचीव इट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपके इनिशियल स्टेजेस में आपका वो गोल अचीव नहीं हो पा रहा। नाउ टू गिव यू एन एग्जांपल, you can start with something like, let's say, 3-day reading per week, right? सर कितने आर्टिकल्स पढ़ें, कितने आर्टिकल्स पढ़ें? भाई देखो, आप अपने आप से पूछो, इफ यू आर समवन हु इज कंफर्टेबल विद रीडिंग, who can manage to read 6-7 articles per day, nothing wrong with that. If you are someone who is just a beginner, pure beginner, और आपको लगता है कि यार 2 आर्टिकल्स को भी पढ़ने में मुझे उनका कंटेक्स्ट देखना पड़ेगा, मैं गूगल पे जाके सर्च करूंगा, एंड रिसर्च इज गुड, कोई भी आर्टिकल आप सिर्फ इसलिए मत पढ़ो कि यार फॉर्मेलिटी चल रही है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने आर्टिकल रीड किया, आपको लगा कि उस आर्टिकल का कंटेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा, स्टोरी पूरी क्लियर नहीं हो रही, राइट? इफ यू आर रीडिंग एन आर्टिकल ऑन Russia versus Ukraine, you cannot understand that article until you understand why NATO is involved. What is the role of natural gas in the entire conflict? Why do you think that America is involved in this conflict? Right? What can be the consequences on people? So, if you read that article on a standalone basis, it won't make sense for you. Okay, and also the second drawback, if you read an article without the background story, is that you tend to forget. ठीक है, तो अगर आप बिगनर हो या आपने रीडिंग को भी स्टार्ट ही किया है ना, तो आपके टारगेट्स छोटे ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप बिगनर हो तो आपका टारगेट रह सकता है कि भाई मुझे जो मैंने 3 days रीडिंग पर वीक का मैंने एक टारगेट निकाला, मैं हो सकता है 2 आर्टिकल्स ही पढ़ूँ डेली। ठीक है, मैं हो सकता है 3 आर्टिकल्स ही पढ़ूँ। ओके, तो वो आपको डिसाइड करना है, बट जो भी आपकी फुल कैपेसिटी है ना 100%, उस 100% का टारगेट मत रखो। इनिशियली आप रखो उसका 60 या 70% कैपेसिटी। अगर आपकी 100% कैपेसिटी की आप 7 आर्टिकल्स रीड कर सकते हो एक दिन में, तो आप उसको टारगेट को रखो 4 आर्टिकल्स 5 आर्टिकल्स, एंड डू इट कंसिस्टेंटली। क्योंकि हो सकता है वो आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी हो लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं हो, है ना? तो कंसिस्टेंसी यू बिल्ड अप, राइट? तो 3-day रीडिंग पर वीक। ओके, then when it comes to RC, you can set a very modest target of 3 days reading comprehension. सर कितने RCs करें? ठीक है, अगर आप अगर आप जस्ट अभी स्टार्ट ही कर रहे हो, तो यू कैन स्टार्ट विद अ नॉर्मल टारगेट ऑफ 2 RCs पर डे। इफ यू थिंक दैट यू आर ऑलरेडी have been preparing for some weeks or months, okay, maybe you can take a target of 3 RCs per day and 3 days in a week RCs, right? Now these are not like independent of each other. वो 3 days जो आपने यहाँ पे लिए हैं, जो 3 days यहाँ पे लिए हैं, वो एक सिंगल डे के अंदर भी दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो बट आप कोशिश करना कि 3 days एटलीस्ट रीडिंग हो जाए, 3 days RC हो जाए, एंड देन वर्बल एबिलिटी की हम लोग बात करेंगे। सो 1 to 2 days आपका VA हो जाए। VA के अंदर आप एक नॉर्मल सा टारगेट ले सकते हो, 10 क्वेश्चंस ऑफ पैराजिम्बल्स या 10 क्वेश्चंस ऑफ ऑड वन आउट, या 10 क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस। ठीक है, उतना टारगेट मेरे हिसाब से ठीक है। ओके, so that is one. Okay, so when you start a reading journey, set a small target. Okay, at the end of the day, what is important is if your systems are in place, and if you keep a target that is too big for you or that is too beyond you, you may end up not achieving the target and losing the fizzle, like you may like fizzle out, or you may lose the enthusiasm in the in the first stages of preparation. ठीक है, तो यहाँ से आप कुछ ऐसा स्टार्ट करो, एक बेसिक कुछ इस तरह का प्लान है। अच्छा, पर वीक में ये जो डेज हैं ओवरलैप भी कर सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा 3 days RC। 3 days RC का मतलब ये है कि भाई आपने एक सर्टेन वीक के अंदर आपको लगता है कि सर 2 दिन कहीं मैं बिजी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 3 days RC और 2 days VA है, तो जिस दिन आप RC कर रहे हो, ठीक है, में से RC के 2 दिन में VA भी कर लो। ठीक है, सो इट्स लाइक लेट्स से 10 क्वेश्चंस ऑफ पैराजिम्बल्स यू टेक अराउंड 40 minutes and you're busy on Saturday and Sunday, so maybe on Thursday and Friday you can do both RC as well as VA. So in that sense, achieving your target, right? Okay, so you can do that. Now, what should be the sources of reading? कहाँ से read करना है? So if you look at the last 10-year CAT papers, almost all the articles, almost all the
sources of passages, the articles, they are all foreign sources. Okay, there's no Indian source as such. ठीक है, तो बहुत रेयर ऐसा होगा कि भाई इंडियन सोर्सेज से ये लोग अपने पैसेजेस को पिक करेंगे कैट वाले. इवन वर्बल एबिलिटी के जो क्वेश्चंस है ना, वो सारे के सारे फॉरेन सोर्सेज से ही आ रहे हैं. Okay, so that is one. So you have to consult some of the foreign sources, and you can choose articles from these foreign sources. What are those foreign sources? क्या क्या sources हैं? Okay, so these are the sources, guys. Okay, so sources के अंदर, if you actually when it comes to foreign sources, one of the very popular source that you have. Okay, so just go on the website of Smithsonian, that is smithsonianmag.org, and you will find a variety of passages. कोशिश करना कि यार स्टार्टिंग के अंदर ना आप कुछ एक या दो एरियाज को ही टारगेट करो, सो दैट यू आर कंफर्टेबल मास्टरिंग एटलीस्ट दोज एरियाज फर्स्ट, and you can decide your own preference. So maybe you can start with something like natural sciences, and for the next 1 or 2 weeks try to just read articles on natural sciences so that you become comfortable with that genre, right? So Smithsonian, you can look at this source. Okay, very good. Then you have Eon essays. Okay, तो इयन एसेस का जो एक फ़ायदा है वो ये है दैट इट हैज़ अ वेरी गुड कैटलॉग ऑफ ऑल द आर्टिकल्स डिफरेंट जॉनर्स. ठीक है, तो लेट अस से कि भी आपको आज सोशियोलॉजी पढ़ने का मूड है, तो आप जाओ इयन एसेस पे, आप वहाँ पे जाके सोशियोलॉजी पूरा क्या कहते हैं लिस्ट खोलो. ठीक है, और उसमें एक बार स्कैन कर लो कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट कर रहा है, राइट? तो यू कैन ऑलवेज लाइक चूज एन आर्टिकल ऑफ योर लाइकिंग, यू कैन स्टार्ट रीडिंग इट फ्रॉम देयर. As a student, if you're following or if you're trying to master one particular area, ठीक है, तो इस वीक के अंदर अगर आपके एक या दो एरियाज का टारगेट है कि यार मुझे थोड़ा सा नेचुरल साइंसेज ज़्यादा पढ़ना है, तो आप जाके नेचुरल साइंसेज वाले पे देख सकते हो, या एंथ्रोपोलॉजी में अगर आपका इंटरेस्ट हो तो एंथ्रोपोलॉजी को देख सकते हो, राइट? तो this is what is good about EON, that they have this catalog, and you can look into the archive and find whatever is of your interest. Then you have bigthing.com. Okay, bigthink.com is more beginner friendly. So if you are just a beginner, तो आप big thing से start कर सकते हो. Big thing has got some interest based articles, science based reading articles. So the big thing is good for that. Then you have one more, freething.com. So that's a good website. Again, you have plethora of topics there. You can actually go through the archive and see which article would you like to read. Okay, now coming to some of the popular newspapers and magazines, mostly these are US based. So you have the Washington Post. Okay, you have NYT, New York Times. Okay, you have the Time magazine. Okay, you have the Prospect magazine. Okay, you have the Atlantic. एंड जो 2023 के अंदर जो आपके कुछ क्वेश्चंस आए थे वीए के अंदर, ओके, दे वर डायरेक्टली पिक्ड फ्रॉम द गार्डियन. ओके, सो गार्डियन के आर्टिकल को करके उन लोगों ने उसका पैराजिम्बल और उसका ऑड वन आउट वगैरह वो सब उन्होंने बनाया था, है ना? तो गार्डियन इज ऑल्सो अ गुड सोर्स इफ यू एक्चुअली वांट टू इंडल्ज रीडिंग. So these are some of the sources that you can see on the screen. Okay, so you can decide for yourself which source would you like to start. I would recommend for someone who is just a beginner, you can start with Big Thing and you can start with Smith. ठीक है, क्योंकि मैनेजेबल आर्टिकल्स हैं इन दोनों सोर्सेज के, थोड़ा सा आपको रीडिंग की प्रैक्टिस हो जाए, देन यू कैन गो ऑन फॉर इयन एसेस, देन यू कैन गो ऑन फॉर दीज अदर सोर्सेज, गार्डियन, एनवाईटी, वॉशिंगटन पोस्ट. ओके, एक चैलेंज जो हो सकता है आपको when you actually read these sources, that is that sometimes you would not be very comfortable with the background story. Now as I already said कि background story का एक अपना relevance होता है, क्योंकि आपको अगर किसी आर्टिकल को enjoy करना है ना, तो उसका background पता होना चाहिए. नहीं पता तो आप फिर उसको एक फॉर्मेलिटी की तरह करोगे, और मैं नहीं चाहता कि आप उसको एक फॉर्मेलिटी बना दो, क्योंकि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज दैट वुड रिजल्ट इन लॉन्ग टर्म बोर्डम. Okay, why do you think you abandon reading? Because you get bored. Why do you get bored? Because whatever you are reading, you have no interest in it. Why you don't have any interest in it? Because you don't know anything about what you are reading. ठीक है, तो आप कनेक्ट नहीं कर पाते. ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि जो टॉपिक्स आपने अभी पिक किए हैं आपको उनका बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जो एरिया अभी आपने टारगेट करना स्टार्ट किया उसमें आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, कीप अ लो टारगेट एंड
ट्राई टू डू अ बिट ऑफ रिसर्च अराउंड दैट एरिया, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कैट 2022 में there was an article, there was a passage on stoicism, the stoic philosophy. Okay, so like you have some of the good books on stoicism. Philosophy का एक concept है stoicism में, है ना, like where you are able to maintain a equanimous state of mind. You are not affected by external events. You are someone who is very calm and composed. Uh, you would find a lot of videos on stoicism, minimalism on YouTube as well, right? So uh, आपने जैसे ये टॉपिक पढ़ा, ठीक है, आपको इॉन एसेज में, इॉन में आप जाओगे तो स्टोइसिज्म पे आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो यू वुड नॉट बी एबल टू कनेक्ट वेरी क्विकली टू द आइडिया ऑफ स्टोइसिज्म एंड ऑल दैट। तो यू कैन डू अ लाइक है ना स्मॉल रिसर्च। एक ब्राउजर पे गूगल खोल लो और उसमें ना थोड़ा बहुत सर्च करो, हु इज मार्कस ऑरेलियस, ओके, व्हाट इज दिस बुक मेडिटेशंस ऑल अबाउट, व्हाट इज द कोर फिलॉसफी ऑफ स्टोइसिज्म, what do stoics believe, okay, how do they think, right? है ना। तो उससे क्या होगा कि आपका जो कनेक्ट है ना उस टॉपिक के साथ वो बिल्डअप होगा, जब नेक्स्ट टाइम वो वापस से वो टर्म आएगा तो यू वुड ऑलरेडी बी कंफर्टेबल विद दैट टर्म, राइट। तो ये जो आपका इन्वेस्टमेंट जो जा रहा है ना टाइम का, इसमें बैकग्राउंड स्टोरी को आप रेफर कर रहे हो, ओके, वो आपका टाइम वेस्ट नहीं है, वो आपका इन्वेस्टमेंट है, ओके। बिकॉज I believe some of you may have already heard of these sources, but you have not started. Why you have not started? Because sometimes you don't enjoy this activity, right? Why you don't enjoy? Because whatever you are reading, you are not able to connect. ठीक है, तो कनेक्ट बनना जरूरी है। वो तभी बनेगा जब जो चीज आप पढ़ रहे हो उसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड पता है, ठीक है। तो वो रिसर्च कर सकते हो आप, टारगेट्स भले कम कर दो, फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ो मत, ठीक है। तो लाइक यू कैन कीप अ वेरी नॉर्मल टारगेट एंड लाइक डोंट जस्ट डू इट फॉर फॉर्मेलिटी, ओके। सो दैट इज व्हाट आई सजेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने बात की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। नाउ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑब्वियसली इज द मैसिव चंक ऑफ द इक्वेशंस दैट यू गेट ऑन वीआरसी। तो वो ठीक है, वो 2/3 आपका 66.6% वो आपका आरसी है। लेकिन आरसी के साथ भी एक चैलेंज यही रहता है कि आप कितने आरसीज कर पाओगे। जो स्ट्रैटेजी की मैंने बात की उससे आपको एक कंफर्ट लेवल आरसी में आ जाएगा। तो जब आप एक्चुअल कैट में जाओगे तो यू विल फाइंड एटलीस्ट 2 आरसीज दैट आर फ्रॉम योर फेवरेट एरिया, ठीक है। बहुत से लोगों को ना अपना फेवरेट एरिया पता ही नहीं होता, जो अभी मैं आरसी में डिस्कशन करके आया हूँ। अगर आप उस तरीके से आप रीडिंग करते हो, उस तरीके से आप रिसर्च करते हो, उस तरीके से आप चीज़ों को कंसिस्टेंटली करते हो, भले ही कम करते हो लेकिन कंसिस्टेंटली करते हो, यू वुड हैव अ क्रिस्टल क्लियर आंसर टू विच आरसीज डू आई लाइक, राइट, एंड यू वुड बी एबल टू पिक अप द आरसीज, राइट। तो ठीक है, वो एक हमारा एक टास्क था, वो जो हमें करना है, हमने कंप्लीट किया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चलो आरसी चूज हो गए, मैंने कुछ आरसीज को एक्चुअल कैट में बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ कर दिया। नाउ व्हाट एल्स, ओके, नाउ ऑब्वियसली इट इज इम्पॉसिबल टू डू ऑल 4 आरसीज, राइट, यू अग्री विद मी। एंड वी ऑल्सो रियलाइज कि यार कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो आरसीज में रॉन्ग होते ही हैं, वो चलता है। अब और स्कोर कहाँ से आएगा? ऐसा स्टूडेंट जो सिर्फ 2.5 आरसी अटेम्प्ट कर रहा है, वो बाकी के 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन इफ यू आर टारगेटिंग 99+ परसेंटाइल ऑन दी वर्बल सेक्शन, वो कहाँ से आएंगे? दे विल कम फ्रॉम वर्बल एबिलिटी, ठीक है। तो verbal ability in my suggestion should be the first area that you start your VA section from. तो VARC को verbal ability से start करना चाहिए। अब हालांकि ये चीज़ कई लोगों को शायद हो सकता है सूट नहीं करे, but this is something that suits me. Okay, so I will tell you the reason why. First of all, in order to decide which question do you need to attempt, it takes only 30 seconds, 20 to 30 seconds for you to make that decision. टीटर टाइप क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आपको पता है कि मैं जो भी क्वेश्चन कर रहा हूँ उसमें मेरा नेगेटिव नहीं जाने वाला, ठीक है। यू कैन ईजिली गेट अराउंड 2 क्वेश्चंस करेक्ट इन पैराजम्बल्स, और खास करके जो अभी लास्ट के आप अगर पेपर्स देखोगे तो उसमें वीए सेक्शन कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुझे नॉर्मल लगा एज कंपेयर टू दी पैसेजेस। तो आपको 2 क्वेश्चंस आपको पैराजम्बल्स में मिल जाएंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो वो एक सेफ जोन है। 30 सेकेंड्स का इन्वेस्टमेंट आपको डिसाइड करने में मैक्स लगता है। 30 सेकंड में मुझे पता चल जाता है कि पैरासमरी करना है नहीं करना, पैराजम्बल करना है नहीं करना, ठीक है। और वो चीज़ बहुत अच्छी है क्योंकि पैसेजेस में वो डिसीजन थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। अब ये डिसाइड करना कि कौन सा क्वेश्चन इन्फ्रेंस बेस्ड है, कौन सा फैक्ट बेस्ड है, एम आई कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज ऑफ द पैसेज, दीज आर लाइक सॉर्ट ऑफ डिसीजंस दैट टेक टाइम, राइट। सो दिस इज गुड, ओके, हियर यू कैन डिसाइड क्विकली, ओके। तो 2 क्वेश्चंस यू कैन इजीली डू फ्रॉम पैराजम्बल्स, नो नेगेटिव मार्किंग। एक गलत भी हो गया तो उसमें नेगेटिव आपका नहीं जाएगा। ऑड वन आउट
बहुत कंफर्टेबल क्वेश्चंस होते हैं गाइस. ओके, दे रिक्वायर द सेम स्किल्स ऑफ पैराजिम्बल्स, बट ऑड वन आउट आर इवन बेटर इफ यू हैव ऑड वन आउट इन द अपकमिंग ईयर, क्योंकि ऑड वन आउट का थोड़ा ऐसा रहता है कि कई बार ये हटा देते हैं. ठीक है, तो अगर ऑड वन आउट मेरे पास आ रहा है तो ऑड वन आउट के अंदर इट रिक्वायर्स द सेम स्किल्स एज पैराजिम्बल्स, बट यू आर नॉट अंडर द प्रेशर टू सीक्वेंस. ठीक है, 4 सेंटेंसेस में बहुत बार ऐसा होगा. एक्चुअल कैट के मैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करवाता हूँ जहां पे आपको ऑड वन आउट बिना सीक्वेंसिंग के पता चल जाता है, बिकॉज यू कैन लुक एट द लैंग्वेज, यू कैन लुक एट द टोन, यू कैन लुक एट द कंटेक्स्ट एंड यू कैन डिसाइड यार ये वाला जो है ऑड वन आउट लग रहा है. ठीक है, 1.5 मिनट में आप ऑड वन आउट का एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. 2 मिनट्स टू 2.5 मिनट्स में आप थीटा टाइप क्वेश्चन पैराजिम्बल का सॉल्व कर सकते हो. राइट, तो इजिली यू कैन गेट 1 to 2 क्वेश्चंस करेक्ट हेयर. ठीक है, पैरासमरी सेम थिंग. पैरासमरी 30 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स में डिसाइड हो जाएगा आपका कि करना है कि नहीं करना. 2 मिनट्स में पैरासमरी, 2.5 मिनट्स में पैरासमरी का क्वेश्चन विद एनफ प्रैक्टिस. ऑब्वियसली ये सारे चीज़ों में मेरा एजम्पशन है कि आपने प्रैक्टिस कर ली है, तो आज से 4-5 मंथ्स प्रैक्टिस के बाद आप पैरासमरी का क्वेश्चन आप इजिली 2-2.5 मिनट्स में सॉल्व कर सकते हो. राइट, so you can get 1 to 2 questions here also. Paragraph completion is a new pattern. पहले paragraph completion में आता था, you would have this the best conclusion. Okay, like you would have 4 options. Which of the following options is going to best conclude the discussion? अभी थोड़ा सा चेंज हो गया. अभी क्या है, ये लोग एक पैराग्राफ देते हैं and in that paragraph 1 sentence is missing. 4 options are given and you're expected to choose at which location would that sentence be placed. ठीक है, तो एक पूरे पैराग्राफ में 1 2 3 4 4 जगहों पे ब्लैंक्स होते हैं. ठीक है, गैप होता है और आपको बताना होता है कि ऊपर एक जो सेंटेंस दे रखा है वो किस वाले गैप में फिट. ओके, तो दिस इज ऑल्सो लाइक अगेन अ डुएबल क्वेश्चन टाइप. वही 20-30 सेकेंड्स आपको डिसाइड करने में लगेंगे कि क्वेश्चन करना है कि नहीं करना. एंड इफ यू हैव एनफ प्रैक्टिस अगेन यू कैन गेट अराउंड 1 to 2 क्वेश्चंस. राइट, ओके, तो यू कैन सी फॉर योरसेल्फ कि यार इन टोटल 5 to 6 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो विद एनफ प्रैक्टिस. और इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम आपका 12 मिनट्स टू 15 अराउंड का होता है. ठीक है, ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस है तो 12 मिनट्स में आप सॉल्व कर लोगे 5 क्वेश्चन सही, और थोड़ी कम प्रैक्टिस है तो हो सकता है आपको 15 मिनट्स लगे. ओके, तो यू कैन लाइक ना, यू कैन एक्चुअली लुक एट दैट. तो verbal ability, best thing, because these are standalone questions, they require less time to decide whether to do it or not, and they take less time to solve. They don't actually require any upfront investment of time. जो पैसेज के साथ एक थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है कि भाई पैसेज आपका अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट मांगता है. ठीक है, तो पहले आप पैसेज को रीड करोगे, उसको समझोगे, समझने के बाद आप क्वेश्चंस पे जाओगे. और कई बार ऐसा होता है, बहुत बार, कि क्वेश्चंस पे पहुंचने का हमें रियलाइज होता है कि शायद यार गलत पैसेज उठा लिया, क्योंकि इस पैसेज का जो कंटेंट है, इसकी जो इंटेंसिटी है, इसकी जो लैंग्वेज है, वो मेरे से बहुत ज़्यादा बियॉन्ड है. तो वो सारी गलतियाँ यहाँ पे नहीं होती. कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्डअप होता है, इसलिए मैं उन बच्चों के लिए ये चीज़ प्रेफर करता हूँ कि भाई जो खास करके जिनको थोड़ा सा एंग्जाइटी वगैरह रहती है, कि भाई यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा. फर्स्ट 10 मिनट्स में अगर आपके 4-5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार मज़ा आ रहा है. ठीक है, एंड देन यू कैन मोर कॉन्फिडेंटली टैकल दी आरसी पार्ट. ओके, तो दिस इज देयर. बाकी यहाँ के जो वाईटी सेशंस है ना, उसमें सब कुछ होने वाला है, तो डू फॉलो दो सेशंस एज वेल जो मेरे अपकमिंग सेशंस आएंगे. आगे बढ़ते हैं. आरसी वर्सेस रीडिंग, व्हाट इज बेटर? ओके, तो let's see. RC is an activity that you have to structure, that you have to make a part of a routine. It's not something that's a natural inclination for most people. You don't do RCs naturally. They are like more target specific. They are more time bound. Okay. तो RCs के अंदर एक टारगेट वाली फील होती है, टाइम बाउंड होते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट आपका इंप्रूव करते हैं और चीज़ों के अंदर एक कंसिस्टेंसी लाते हैं, लेकिन आपको एक्सटर्नली खुद करना पड़ता है. रीडिंग इज समथिंग दैट इज एंजॉयबल. इट कैन बी डन ऑन अ मोर लॉन्ग टर्म बेसिस. ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू डोंट गेट बोर्ड. राइट, ओके, कितना भी कर सकते हो. अब आरसीज के साथ एक लिमिट हमेशा रहेगी कि भी आरसीज आप अनलिमिटेड नहीं कर सकते, because RC is something that requires some amount of time for your analysis as well. ठीक है, तो मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो भाई जैसे अगर आपने एक RC किया, अगर उस RC को 12 मिनट्स में आपने सॉल्व किया तो कम से कम आपको 12 to 15 मिनट्स तो आपको एनालिसिस में लगेंगे.
ठीक है, एनालिसिस आप नहीं कर रहे तो आरसी के अंदर जो आपने किया है ना उसका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज जो आपका सही था वो पहले भी सही था, क्योंकि उतना समझ आपको थी। ठीक है, नाउ देयर इज नथिंग दैट यू हैव लर्न, राइट? सो even if you do an RC of CAT level in 10 minutes, it would require at least 10 minutes for you to analyze. Okay, so for a normal person, if he's investing 1 hour for reading, you can do at max 3 RCs in that of CAT level. ठीक है, अब CAT से इजी कर रहे हो तो ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन जो एक्चुअल CAT लेवल होता है उसमें 3 RCs विद एनालिसिस आप 1 घंटे में उससे ज़्यादा बहुत मुश्किल से कर पाओगे। ठीक है, एंड दिस इज अ स्ट्रेसफुल एक्टिविटी, दिस इज गुड फॉर टाइम मैनेजमेंट, दिस इज मोर टारगेट स्पेसिफिक एंड ऑल दैट। रीडिंग इज मोर एंजॉयबल, है ना, मजा आता है। आपने सुना होगा कि भाई आपने कोई अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी नॉवल उठाई, मेरे साथ तो बहुत होता है, टाइम का पता ही नहीं चलता, 5-6 घंटे, है ना। लाइक व्हेन आई रेड 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल, आई वाज लिटरली इमर्स इन दिस नॉवल एंड I enjoyed it to such an extent that I was able to complete it in like 4-5 days, right? And it's a dystopian novel, उसमें डेप्थ है, सारी बातें, बट मज़ा आ रहा था, है ना। तो रीडिंग में मज़ा आता है तो आप है ना ज़्यादा कर पाते हो, और मैं आपको ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपको ऐसा लगे कि वही स्ट्रेस जनरेट हो रहा है एंड ऑल दैट। तो दिस इज गुड अबाउट रीडिंग। मोस्ट ऑफ अस, मोस्ट ऑफ यू हु हैव अ गुड वोकैबुलरी, यू हैव गुड वोकैबुलरी बिकॉज आपकी रीडिंग अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें, दोनों चीज़ें, अब इसमें बेटर क्या है? देखो यार, बेटर का ऐसा है जवाब कि दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। रीडिंग करना इसलिए ज़रूरी है सो दैट यू हैव अ गुड बेस, ओके, बिकॉज रीडिंग कैन बी डन फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस ऑफ टाइम, एंड this is more enjoyable. So this will enhance your skill in a manner that you cannot do in RC, because RCs would always have that factor of stress. It would always make you tired, whereas reading is something that you can do for like even extended durations. ठीक है, तो दोनों ही करना है, दोनों ही चीज़ों को करना है। रीडिंग को इसलिए करना है क्योंकि आपको अपनी कोर स्किल्स इंप्रूव करनी है, वर्बल की कोर स्किल्स का मतलब कंटेक्चुअल वोकैबुलरी हो गई, योर एबिलिटी टू लाइक रियली सस्टेन रीडिंग फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम, टू डेवलप योर इंटरेस्ट इन न्यू एरियाज, है ना, दैट वुड बी रीडिंग, राइट? ठीक है, तो उसमें इयॉन एसेज और आपका स्मिथसोनियन वगैरह वो सब आ गया। आरसी से टाइम मैनेजमेंट आता है, ठीक है, आप ज़्यादा टारगेट स्पेसिफिक बनते हो, आप अपनी गोल्स पे वापस से लौट के आते हो कि यार ये ठीक है, ये चीज़ मुझे करनी है, एक टाइम बाउंड मैनर में करनी है, मुझे ध्यान रखना है कि मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं पूरा आरसी को समझ ही लूँ, मेरा पर्पस मेन तो ये है कि क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर पाऊँ विद गुड एक्यूरेसी। तो इट मेक्स यू मोर टारगेट ड्रिवन। नाउ एज आई सेड, दोनों ही ज़रूरी हैं, ठीक है। तो जो मैंने अभी इनिशियली प्लान बताया था, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, 3 days आरसी, 3 days आपका रीडिंग, ओके। एंड ऑब्वियसली दिस इज फॉर यू एज्यूमिंग दैट यू आर जस्ट स्टार्टिंग। आप अगर एक एडवांस रीडर हो तो आप अपने टारगेट्स इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो भी आपकी करंट कैपेसिटी है ना, स्टार्टिंग में ही बहुत बड़ा टारगेट मत रखना, मैं बस वो कह रहा हूँ, राइट? चलो आगे चलते हैं, ओके। अब आती है भाई वोकैबुलरी की बात कि सर वोकैब का क्या करें, ठीक है। समझ में आ गया, रीडिंग करनी है, कर लेंगे, आरसीज करने हैं, आरसीज के लिए भी चलो स्टार्ट कर देंगे, तैयारी है ना, आरसीज भी कर लेंगे, 3 दिन हो गया। वर्बल एबिलिटी देखनी, क्योंकि वर्बल एबिलिटी में हर क्वेश्चन में कम टाइम लगता है, वो भी ज़रूरी है, उसको भी कर लेंगे भाई 1 या 2 दिन, राइट? व्हाट अबाउट वोकैबुलरी? वोकैब तो आती भी नहीं है कैट में, है ना, ओमैट्स में आती है, तो भी वोकैब का क्या करें? व्हाट शुड आई डू विद वोकैब? ओके, तो देखो यार, वोकैब आती तो नहीं है, बट in order to understand a passage and in order to do a question, sometimes you require vocabulary. बहुत बार आपको पैसेज का जो मेन एसेंस है ना वो समझ में ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो पैसेज को पढ़ा उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आ गए जिन्होंने आपकी अंडरस्टैंडिंग को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। तो आपको ज़रूरत पड़ेगी वोकैब की, ठीक है। एंड जिस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी स्पेसिफिकली, दैट इज कंटेक्चुअल वोकैब, ओके। ओके, अब कंटेक्चुअल वोकैबुलरी क्या होती है जो कैट में आती है? अच्छा, कंटेक्चुअल वोकैब के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सो एंड सो वर्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज, ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग्स इज क्लोजेस्ट टू द यूज ऑफ द वर्ड सो एंड सो वर्ड इन द लास्ट पैराग्राफ, है ना। तो इंग्लिश में क्या होता है कि एक ही वर्ड के ना मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, ओके, मेटाफोरिकल मीनिंग भी होता है, एक उसका लिटरल मीनिंग होता है। एक ही वर्ड को, एक ही शब्द को आप अलग अलग तरीकों से अलग अलग सिचुएशंस में यूज कर सकते हो। ये कुछ लोगों को स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा परेशान करता है, ओके, यू हैव टू बिकम कंफर्टेबल,
you have to maintain a separate notebook where you note down all the new words that you are learning through your reading activity. ठीक है, तो उसमें आपको ना वो नोट्स रख, रोज के जितने भी न्यू वर्ड्स आपको मिलते हैं, जैसे आपने सपोज करो कि आपने 3 पैसेजेस से 3 आर्टिकल से स्टार्ट किया, 3 आर्टिकल्स में जो आपको वर्ड्स मिल रहे हैं वो आप उनको नोट डाउन करो। ठीक है, ये सर 20 वर्ड्स मिले मेरे को, एंड दिस वाज द कंटेक्स्ट एंड दिस वाज द मीनिंग, बिकॉज यू आर एबल टू रिलेट टू द कंटेक्स्ट, योर रिटेंशन वुड बी मच मोर। ठीक है, कोई मूवी के अंदर कोई अच्छा सा वर्ड देखा तो उसको कंटेक्स्ट के साथ उतार लो, बिकॉज यू हैव सीन द वर्ड इन कंटेक्स्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव, इन व्हाट फ्लेवर, in what situation the word has to be employed, that becomes like more relatable. जब आप वर्ड को ना कहीं से रट्टा मारते हो या जब किसी किताब से पढ़ते हो तो उतना रिलेटेबल नहीं होता, लेकिन जब रीडिंग के थ्रू आप किसी वर्ड को एनकाउंटर करते हो ज़्यादा रिलेटेबल होता है ना, तो कॉपी मेंटेन करो। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, रीडिंग के अंदर इन जनरल भी यू हैव टू मेंटेन अ नोटबुक टू राइट डाउन द समरी ऑफ एनी आर्टिकल दैट यू रीड। व्हाई? इट क्रिएट्स अ फिजिकल एविडेंस। एक हफ्ते बाद आप उठा के देखोगे तो आपको पता होगा कि यार ये सारा मैंने लास्ट 1 वीक में किया है। These are the 10 articles that I've read in the last 1 week. These are 3 lines का summary, and these are the new words that I've learned. Even if you're learning 20 words per day, that is equal to 600 words in a month. ठीक है, बहुत अच्छा है। 600 words अगर आप कर रहे हो तो, है ना, ठीक है, सिर्फ रीडिंग के थ्रू कर रहे हो। वर्ड पावर में डीजी में करोगे तो वो वर्ड्स तो अलग है, ठीक है, बट आप सिर्फ रीडिंग से 600 वर्ड्स अगर आप एक मंथ में सीख पा रहे हो तो दैट इज गुड। ओके, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंटेक्चुअल वोकैबुलरी। कंटेक्चुअल वोकैबुलरी का मैं थोड़ा एग्जांपल आपको देता हूं, क्योंकि कैट में कंटेक्चुअल वोकैब आती है। तो लेट्स लुक एट दिस वर्ड स्टीप। ओके, व्हेन आई से steep climb, okay, the car, like it became tougher to drive the car because the climb was steep. It was a steep climb. हिंदी में बोलते हैं ना खड़ी चढ़ाई, तो इट्स लाइक परपेंडिकुलर, इट्स अ वेरी शार्प इंक्लिनेशन। ठीक है, तो कोई चीज जो बिल्कुल इंक्लिनेशन में बहुत शार्प है, आपका रोड कुछ इस तरीके का ऐसे चला गया ऊपर, है ना, तो इट्स लाइक इट्स अ शार्प इंक्लिनेशन, so that is a steep climb. So when I say that it was difficult to drive the car because it was a steep climb, you know that what is the meaning of steep in this context. Then when I say steep in terms of cooking, okay, we steeped the oranges in the wine overnight so that it becomes better in taste. Now when you say steeped in this context means to immerse. ठीक है, किसी चीज को किसी में डुबा के रख देना so that it's able to absorb. So when you literally steep something overnight in a liquid, it means that you have immersed it and allowing the liquid to seep in and to get absorbed. That is also steep. ठीक है, आपने कुकिंग के कंटेक्स्ट में सुना होगा। स्टीप को हम लोग कई बार एक मेटाफोरिकल सेंस में ऐसे भी यूज कर लेते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, लेट अस से जयपुर इज अ सिटी स्टीप्ड इन हिस्ट्री। जयपुर इज अ सिटी स्टीप्ड इन हिस्ट्री। अब स्टीप्ड इन हिस्ट्री, यहाँ पे जो वर्ड स्टीप है जिसको मैं एज अ वर्ब यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर तो मैंने एज अ एडजेक्टिव यूज किया था ना, स्टीप क्लाइम, तो इट्स लाइक शार्प क्लाइम, है ना, लाइक टोटली परपेंडिकुलर। यहाँ पे मैं इसको एज अ वर्ब यूज कर, so when I say Jaipur is a city steeped in history, so what do I mean here steeped in history? यहाँ पे जो मीनिंग है ना वो ये है कि जयपुर एज अ सिटी हिस्ट्री में डूबा हुआ है, इमर्स्ड है। ठीक है, मतलब कल्चर को जयपुर ने पूरा ऐसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रखा है। So the thing is that now I'm using it in a more metaphorical sense because literally it's not getting steeped, right? कोई लिक्विड थोड़ी है जिसमें स्टीप आपने लिटरली कर रखा है ना, तो यहाँ पे मेटाफोरिकल सेंस है कि जयपुर हिस्ट्री में डूबा हुआ एक शहर है ना, तो वो एक मीनिंग है। ओके, कई बार आपने सुना होगा कि स्टीप इंक्रीज इन प्राइसेस हो गया। स्टीप इंक्रीज इन प्राइसेस का मतलब क्या हुआ? सडन, शार्प, कि किसी चीज की कीमत 10 रुपए की 100 रुपए हो गई है ना, सो लाइक दैट्स अ स्टीप इंक्रीज। यू कैन ऑल्सो हैव अ स्टीप फॉल, दैट इज अगेन अ शार्प फॉल। कोई चीज बहुत सडनली हो जाए, है ना, समथिंग दैट वाज इनिशियली लेट्स से 100 रुपीज और 10 रुपीज की हो गई, व्हाट सॉर्ट ऑफ फॉल इज दिस? दिस इज अ स्टीप फॉल इन प्राइसेस। Okay, so sudden ups and downs that are also like, you know, you can use the word steep as an adjective for that situation also. आई थिंक यार आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो पूरा वोकैब वाला जो कंटेक्चुअल वोकैब का जो फंडा है, ये तो रीडिंग के थ्रू ही मस्त आता है, रीडिंग के थ्रू ही बेटर आता है ना। और उसको नोट डाउन करो, कोई भी चीज नई वर्ड आपको नई सिचुएशन में देखिए आप नोट डाउन करो, एंड नेवर बी अंडर कॉन्फिडेंट अबाउट योर रिटेंशन स्किल्स। गाइस बिलीव मी,
क्योंकि ये क्वेश्चन कई लोगों का होता है कि सर आप ये कहते हो कि बहुत सारे वर्ड्स हमें ना 2 to 3 रिपीटेशंस में याद हो जाते हैं, बट मैंने किसी वर्ड को है ना 10 बार पढ़ लिया, मुझे याद नहीं हो रहा। तो a lot of it is also mindset. If you are someone who is sitting with a mindset that okay, this 1 hour, whatever I am going to learn, whatever I am going to see, I would try to retain as much of it as possible. मैंने आपको ये वर्ड समझाया, हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको सेकंड रिवीजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उनका ये वर्ड हो गया, ठीक है। और अगर आप फर्स्ट टाइम जब पढ़ रहे हो तो आपकी इंटेंसिटी 50% है कि यार ठीक है बाद में रिवाइज कर लेंगे। तो अगर आपके माइंड में चल रहा है कि बाद में रिवाइज कर लेंगे तो वो वर्ड याद नहीं होगा, ओके। और एग्जाम्स के अंदर आपसे हमेशा ना कभी भी वर्ड ना आपसे डायरेक्टली लिखवाया नहीं जाता कि इसका मीनिंग लिख दो। यू ऑलवेज गेट हिंट्स क्योंकि ऑप्शंस आते हैं ना, राइट। तो it's not that it's that much stressful for you to remember, because in the actual exam also you get options, okay, so that's good, right? Okay, so it's a very doable thing, like I would suggest कि आप बिल्कुल करें इसको। Where should I start? Last question. Okay, so where should I start? So one is that you already are doing or you do words from reading, and you develop a contextual vocabulary. Contextual vocabulary is the most natural way to learn vocab. और एक अगर आपका एग्जाम नहीं भी होता तो भी आप vocab कैसे सीखते हैं? आप कंटेक्स्ट से ही सीखते हो। Okay, people who are native English speakers, how do they learn vocabulary? They learn through the context. Okay, context. You can find the context in movies. You can find the context in novels. You can find the context in non-fiction. You can find the context of the word in passages. Okay, you just need to reflect. You just need to look into the context to make sense of the word. ठीक है, तो एक तो contextual vocabulary होगी जिसकी हम लोगों ने बात की। Second is that you can actually purchase some books that are specifically meant for vocabulary. The most popular book out of all of them is WordPalm Made Easy. Now, there's one suggestion for WordPalm Made Easy. WordPalm Made Easy looks like a bulky book. It's like, it looks thick. Okay, the reason is that there is a lot of, I would say, superfluous content in WordPalm Made Easy that makes it bulky. आपको अपने टारगेट पे रहना है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन इज समथिंग दैट इज गुड, बट प्रोनाउंसिएशन इज नॉट a part of our CAT syllabus, okay, so you can ignore that part. Then there are multiple exercises of the same word. एक ही word को उन लोगों ने multiple exercises में समझाया है। If you are someone who is above average, obviously you would understand and make sense of the word in 1 or 2 exercises. You can ignore the rest of the exercises. It will save you a lot of time. In order to explain a single word, they have written multiple stories. भाई मुझे समझ में आ गया एक स्टोरी के अंदर, मुझे वो सारी स्टोरीज नहीं पढ़नी। So if in a single chapter you have 20 words, your focus is to learn and understand those 20 words. Your target is not to read all the stories related to that word. ठीक है, so be target specific. वो जो आपको thickness दिखती है वो इसलिए दिखती है क्योंकि उसमें चीज़ों को ना बहुत बार रिपीट किया गया है। तो वो स्मार्टनेस आप रखो कि भाई ठीक है मेरा टारगेट है इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। सो देयर आर मल्टीपल चैप्टर्स, यू कैन रैंडमली पिक अप एनी चैप्टर अकॉर्डिंग टू योर विम्स एंड फैंसीज एंड इट वुड जस्ट वर्क आउट फाइन। क्योंकि ये भी क्वेश्चन है कि सर सीक्वेंस में ही पढ़ना होता है क्या? नहीं, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। vocabulary is something that you can do without any sequence also. You can do it as per your like whimsical है ना एटीट्यूड एज वेल। जिस दिन जो मूड कर रहा है उस कैटेगरी को पिक करके उसको कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक मैथ्स वेर यू हैव टू फॉलो अ सर्टेन सीक्वेंस, ओके। तो है ना, आप कर सकते हो, है ना, ठीक है। बस टाइम मत वेस्ट करना। आई बिलीव शायद आपको समझ में आया होगा। तो यार ये वर्ड्स वोकैब की हम लोगों ने थोड़ी बहुत बातचीत की यहाँ पे, ओके। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए भाई इतना ही, ठीक है। आज के लिए हम लोग बातचीत को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। एंड बिफोर वी एंड दी सेशन, ओके, सो गाइज दिस इज द बैच दैट वी करंटली हैव एंड आई होप यू ऑलरेडी नो ऑल दीज फैकल्टीज़। तो उदित सर को आप जानते ही हो, बाकी फैकल्टीज से भी आप मिल चुके हो, विजय सर को आप जानते ही हो, ठीक है। मेरे से भी आपकी मुलाकात हो चुकी है, कम हुई है हाँ, लेकिन हो चुकी है। So you already know all these faculties. So if you want to study, you can actually look into this batch as well, है ना। So when I say look into, you can see कि हाँ ठीक है यार अपने को सूट करता है कि नहीं करता। Okay, for the upcoming session, आगे का जो प्लान है वो किस तरीके से रहेगा। So I would be discussing passages, I would be discussing VA questions. तो नीचे जो टेलीग्राम का लिंक है आप उसे ज्वाइन कर लेना, बिकॉज बिफोर आई अपलोड माई RC सेशन यू वुड गेट दी PDF। तो आपको
उस सेशन के पहले पीडीएफ मिल जाएगी। उस पीडीएफ को आपको सॉल्व करना है, एक बार ट्राई करना है, ठीक है, और उसके बाद यू हैव टू सी द सॉल्विंग ऑफ द पैसेज दैट आई विल बी डूइंग इन द क्लास, ठीक है। सो वो चीज़ है, तो आप डू जॉइन द टेलीग्राम लिंक सो दैट यू हैव एक्सेस टू whatever content, whatever PDFs I'm putting there, and you can try those questions so that you can look at the video solutions when I upload them, right? So that is how it is, guys. I hope मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।